Hello students, welcome to Gnanmanjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have completed our history part unit number 1, and in this video we will move to our unit number 1, social and political life. So in the social and political life today, first of all we will learn about equality, chapter number 1. So let's get start the topic. Okay, so first of all, in this chapter, I will start one animated video. So please carefully watch this video. Okay, I'll start. Universal adult franchise. We keep hearing about elections in the news. On voting day, we find people in the voting booth casting votes. Have you ever wondered who gets to vote in these elections? Let's find out. Imagine a country where not everyone is allowed to vote. In this country, only those who earn more than 50,000 rupees a month can vote. Do you think everyone is treated equally in this country? In this country, not everyone has the right to vote and choose their representatives. So, it is not a democratic country, because in democracies, every citizen has an equal right to choose their leaders, just like Kanta had in the story that we read. To ensure that every citizen has a right to vote, democratic countries like Sri Lanka, India, France, and Canada follow the principle of universal adult franchise. It means that every adult citizen has the right to vote without any discrimination on the basis of one's social or economic background. Universal adult franchise ensures the democratic principle of equality in our nation's elections. In India, anyone who is 18 years or above has the right to vote. Factors like class, religion, location, income, and gender do not matter. So, now we know what universal adult franchise means and how important it is to ensure equality and democracy in a country. When you turn 18, you too will exercise your right to vote and participate in elections. Okay, so I hope you understood very well about universal adult franchise. So first of all, we will learn about meaning and useful importance of the universal adult franchise. So meaning is every adult citizen's right to vote. एडल्ट सिटीजन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इसकी एज होगी अबव 18 ईयर्स। कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन जिसकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा होती है, इसको हम एडल्ट सिटीजन कहते हैं। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में जो भी एडल्ट सिटीजन है इसको वोट करने का राइट है, मीन्स ये वोट कर सकता है। सो सेंटेंस क्या होगा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रमोट्स इक्वालिटी इन डेमोक्रेसीज। और इससे क्या होगा? इक्वालिटी प्रमोट होगी, क्योंकि सभी पर्सन इक्वल है। यहाँ पर कोई कास्ट, रिलीजन, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। So here we can see that one important question. So question is, how does universal adult franchise support equality in democracies? So answer है, universal adult franchise supports equality in democracies by giving every adult citizen to right to vote, irrespective of their caste, religion, wealth or educational status. सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वालिटी को सपोर्ट करती है, क्योंकि हम बात करें कि कोई भी सिटीजन हो, अगर एडल्ट है जिसकी एज अबव 18 है, ये वोट कर सकता है। और इसमें कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई वेल्थ, कोई एजुकेशनल
स्टेटस देख के वोट नहीं करना है. सो दैट्स वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सपोर्ट इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी. Then let's move to practice question 1.1. So question is, identify and write the news headlines given below that show inequality in your notebook. So यहाँ पर कुछ headlines है और इस headlines में से कुछ headlines inequality को show करती है. So इसको हमें identify करना है. ये क्वेश्चन आपको फेयर बुक में लिखना होगा क्योंकि आपकी फेयर बुक में ये सभी हेडलाइंस नहीं दी गई है. सो आपको क्या करना होगा, फेयर बुक में ये सभी सेंटेंस लिखने होंगे. देन इसमें से जो भी इन इक्वालिटी को शो करता है इसके सामने आपको टिक मार्क करना होगा. सो सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा है. सो हम देखते हैं आंसर. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्लू जो भी वर्ड्स है, सेंटेंस है, ये सभी इनइक्वालिटी को शो करेंगे. सो मैं पढ़ता हूँ. दलित बॉय बीटन ओवर एंट्री इनटू टेम्पल. कोई दलित बॉय है जिसने टेम्पल पे एंट्री की तो उसको मारा गया. तो ये भी एक इनइक्वालिटी को दर्शाता है. देन Delhi University raises fees of their course from 2000 to 2 लाख. तो ये भी एक इनइक्वालिटी है कि फीस में बढ़ोतरी होना. देन लोकसभा इलेक्शंस सेट फॉर जून. ये इनइक्वालिटी को नहीं बताता क्योंकि इलेक्शन कोई भी डेट पे हो, इससे इनइक्वालिटी नहीं होगी. देन नो हॉलीडे फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑन दिसंबर 25 इन न्यू दिल्ली. दिसंबर 25 को होती है क्रिसमस. तो दिल्ली के जो भी एम्प्लॉयज़ है इसको दिसंबर 25 पे हॉलीडे नहीं होगी. तो ये भी एक इनइक्वालिटी है. देन फीमेल एक्टर्स पेड मच लेस देन द मेल एक्टर. मेल एक्टर से फीमेल एक्टर को काफ़ी कम सैलरी मिलती है एक मूवी के लिए. तो ये भी एक इनइक्वालिटी को दर्शाता है. देन स्कूल्स टू रिमेन क्लोज्ड ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड. तो ये इनइक्वालिटी को नहीं दर्शाएगा क्योंकि कोल्ड पड़ेगी तो सभी को असर होगी, सभी के लिए स्कूल बंद रहेगी. कोई एक कास्ट, कोई एक पर्सन के लिए ये लागू नहीं होता. Then let's move to practice question 1.2. So question is, based on the stories that you read from the textbook, the two story given below, fill the table on the next page with information about the different forms of inequality. So इसमें आपको क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिल रही है ये आप अपनी सप्लीमेंट्री बुक में डायरेक्टली लिख दो. हम स्टोरी भी नहीं देखेंगे क्योंकि स्टोरी एनसीईआरटी बुक में है और काफ़ी बड़ी स्टोरी है. सो हम इसकी समरी देखेंगे इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी है कांता स्टोरी. कांता एक लड़की है जिसकी स्टोरी क्या है. सो क्वेश्चन है, हु इज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली, इन व्हाट वे इज देयर इनइक्वालिटी. सो इस स्टोरी में किसको अनइक्वली ट्रीटेड किया गया है. सो कांता is being treated unequally. She does not have access to proper sanitization and health facilities because she is poor. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनइक्वालिटी है क्योंकि उसको प्रॉपर सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही क्योंकि वो पुअर है. सो पुअर है तो क्या हुआ, उसको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ और सैनिटेशन तो मिलना ही चाहिए. सो सेकेंड क्वेश्चन है कि हाउ वुड द पर्सन बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली बी फीलिंग. ड्रॉ द इमोशन और राइट इन वन वर्ड. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हेल्पलेस है. कांता हेल्पलेस है जिसको हेल्प प्रॉपरली नहीं मिल रही. देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट एंड इट इज ओम प्रकाश वाल्मीकि स्टोरी. सो हु इज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली, इन व्हाट वे इज देयर inequality. So Om Prakash Valmiki is being treated unequally. He is not allowed to sit with other students in the class due to his caste. ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी में क्या होता है कि उसको अदर स्टूडेंट के साथ बैठने नहीं दिया जाता क्योंकि वो एक अदर कास्ट से बिलोंग करता है. तो ये भी एक अनइक्वालिटी होगी क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को ऐसा कोई तो होना नहीं चाहिए कि एक साथ एक बेंच पे नहीं बैठ सकते. तो ये एक इनइक्वालिटी है.
then how would the person being treated unequally be feeling? उसको feeling क्या आएगी? So alone and sad, क्योंकि कोई उसके साथ बैठता नहीं है तो ये alone हो जाएगा और sad भी हो जाएगा. Then third story, Mr. and Mrs. Ansari's story. ये स्टोरी में मिस्टर एंड मिसेस अंसारी आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली बिकॉज दे आर डिनाइड अ हाउस ऑन रेंट ड्यू टू देयर रिलीजन. सो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को इस स्टोरी में कोई हाउस रेंट पे नहीं देता था क्योंकि उसका रिलीजन के कारण उसको कोई हाउस रेंट पे नहीं देता था. तो ये भी एक इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है. सो how would the person being treated unequally be feeling? So यहाँ पर आएगा feeling क्या होगी? Disappointed and humiliated. So disappointed काफ़ी उदास हो जाएगा और humiliated कि उसको एक religion के बेस के ऊपर humiliate किया जा रहा है. Then let's move to next story and it is Simran's story. So in this story, Simran is being treated unequally. She is not allowed to go to school as she is a girl. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिमरन को स्कूल में जाने के लिए कोई अलाउ नहीं करता था क्योंकि ये एक गर्ल है, लड़की है. तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इनइक्वालिटी है. लड़की है तो क्या हुआ, स्कूल तो जाना चाहिए, स्कूल तो उसको अलाउ करनी ही चाहिए क्योंकि सभी के लिए एजुकेशन इक्वल है. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं हाउ वुड द पर्सन बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली बी फीलिंग. उसको क्या फीलिंग होगी? तो यहाँ पर आंसर आएगा सैड फीलिंग होगी. देन नेक्स्ट स्टोरी है अनिल्स स्टोरी. सो इन दिस स्टोरी अनिल इज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली. The school has not included any sport in which he can participate. So यहाँ पर है कि अनिल ने स्कूल ने ऐसी कोई स्पोर्ट पे कंपटीशन ही नहीं रखी जहाँ पर अनिल पार्टिसिपेट कर सकता है. अनिल को जो भी स्पोर्ट पसंद है यहाँ पर स्कूल ने कोई भी कंपटीशन इंक्लूड नहीं किया और अनिल को कोई भी कंपटीशन में इंक्लूड भी नहीं किया गया. तो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी है कि सभी को सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. कोई स्टूडेंट को ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि आपको कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा. सो यहाँ पर फीलिंग है हाउ वुड द पर्सन बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली बी फीलिंग. सो यहाँ पर है डिसअपॉइंटेड एंड एनॉयड कि यहाँ पर अनिल काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ है और काफ़ी एनॉय काफ़ी चिंतित हो गया है. Then let's move to our next topic and it is recognizing dignity. So when people are treated unequally, their dignity is violated. Dignity means being treated with respect. So अगर कोई भी पर्सन के साथ अनइक्वली ट्रीटमेंट हुई है तो उसकी डिग्निटी वायोलेट होगी. डिग्निटी का मीनिंग क्या होता है? रिस्पेक्ट. उसको एक कोई प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही. सो एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स टू लाइव विथ डिग्निटी. हर ह्यूमन डिजर्व करता है कि उसको एक डिग्निटी के साथ लाइफ मिले. कोई उसकी इरिस्पेक्ट ना करे, उसको अनइक्वली ट्रीट ना करे. सो इन ईच ऑफ द स्टोरीज अबव the dignity of different individuals was violated. So for example, by sending Simran's brother to school and not allowing her to go, Simran's parents made her feel less important than her brother. Simran's dignity was violated in this case. So हमने अभी सिमरन की स्टोरी देखी जिसमें सिमरन को स्कूल में जाना अलाउ नहीं किया था उसके पेरेंट्स ने. उसके ब्रदर को जाना अलाउ किया था क्योंकि वह एक बॉय है, बट सिमरन एक गर्ल है इसीलिए उसको स्कूल में जाने के लिए अलाउ नहीं किया था. सो यहाँ पर सिमरन की डिग्निटी, सिमरन की रिस्पेक्ट वायोलेट होती है. सो दिस इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी. Then let's move to practice question 2.1. So in this question आपको क्या करना है कि कोई भी पर्सन जिसकी डिग्निटी वायलेट होती है तो उसके बारे में लिखना है, अगर नहीं होती तो उसके भी बारे में लिखना है और क्या रीज़न है कि जिससे उसकी डिग्निटी
वायलेट होती है इसके बारे में भी लिखना होगा। सो फर्स्ट सेंटेंस इज उल्लास वॉज रिजेक्टेड इन अ जॉब इंटरव्यू बिकॉज ही डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। उल्लास एक पर्सन है जिसको जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसका रीजन था कि उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस नहीं थी। सो यहाँ पर आंसर आएगा उल्लास डिग्निटी was not violated because his rejection was based on his qualification and not on the amount of wealth he was, his caste or color। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि डिग्निटी वायलेट नहीं होगी क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन ही ये जॉब के लिए नहीं है तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोई कास्ट कोई कलर उसकी वेल्थ के अकॉर्डिंग उसको वायोलेट उसको यहाँ पर इनइक्वल नहीं माना है। देन हम बात करें कि सेकेंड सेंटेंस है राधिका वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक ऑन द एनुअल डे फंक्शन ऑफ द कंपनी बिकॉज शी वॉज अ वुमन। राधिका जिसको एनुअल डे के दौरान स्पीक मीन्स उसको स्पीच देने का अलाउ नहीं दिया था कंपनी ने क्योंकि वह एक वुमन थी। सो यहाँ पर डिग्निटी वायलेट होती है। राधिकास डिग्निटी वॉज वायलेटेड बिकॉज शी वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन हर जेंडर। उसकी जेंडर के अकॉर्डिंग वायोलेशन देखने को मिलता है कि वह एक गर्ल है वह एक वुमन है तो इसीलिए उसको स्पीच देने के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे। Then third sentence, Vikas was traveling by train without a ticket. The ticket collector fined him and asked him to get off the train at the next stop। तो यहाँ पर भी विकास dignity was not violated because he was punished for not following the law। सिंपल है कि यहाँ पर विकास की डिग्निटी वायलेट नहीं होती क्योंकि उसने लॉ को वायलेट किया है, उसने लॉ को पूरा कंप्लीटली फॉलो नहीं किया है इसीलिए उसको पनिशमेंट मिलती है कि आप अगले स्टेशन में जाके उतर जाना ट्रेन में से। द नेक्स्ट सेंटेंस है अ बस ड्राइवर अलाउस ओनली द सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपल टू राइड इन हिज बस। सो in this sentence the dignity of the people belonging to the so called lower caste is violated because they are being discriminated against based on their caste। yes ये सेंटेंस में लोअर कास्ट के पीपल की डिग्निटी वायलेट होगी क्योंकि सेंटेंस में लिखा है कि ओनली अपर कास्ट के पीपल ही बस पे सवारी कर सकते हैं तो यहाँ पर लोअर कास्ट को अलाउ नहीं किया है। Then let's move to our next topic and it is equality in Indian democracy। So India is a democratic country working towards achieving equality for everyone। There are four factors that can make this happen। India एक democratic country है, democratic country में equality होनी काफ़ी ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट टोटल ये 4 पॉइंट से अपनी equality को दर्शाता है। So first of all a constitutional rights, second है government schemes और programs, third है laws made by the government and individual efforts। So let's learn about them। So first of all constitutional rights ये क्या होते हैं। So the Indian Constitution provides the following rights to all citizens to ensure equality। First of all every person is treated as equal बिफोर द लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर पर्सन को इक्वली ट्रीट करना है। कोई भी लॉ होगा कोई भी जस्टिस होगा सभी पॉइंट्स के लिए एवरी पर्सन इज ट्रीटेड एज इक्वल। देन सेकेंड पॉइंट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन रेस कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन रेस कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। द नेक्स्ट पॉइंट एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स रोड्स एंड पब्लिक वेल्स। सभी पर्सन को जो पब्लिक प्लेसेस है यहाँ पर जाना अलाउ किया गया है लाइक प्लेग्राउंड्स यहाँ पर कोई भी कास्ट कोई भी रिलीजन को मना नहीं किया गया है। देन रोड्स पब्लिक वेल्स यहाँ पर सभी पर्सन जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। देन द प्रैक्टिस ऑफ
अनटचेबिलिटी हैज बीन बैन। और अनटचेबिलिटी मीन्स किसी को टच करना काफी बुरा माना जाता था इन द एंशियंट टाइम, बट ये अभी बैन किया गया है कि अभी अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें कहते हैं कि हमें इक्वालिटी को मेंटेन करना है इन आवर कंट्री। Then second factor it is government schemes or programs. So the government brings out various schemes to support different sections of people and achieve equality. The midday meal program is one of such scheme. It has helped to increase the attendance of children in government elementary schools by providing them न्यूट्रिशियस मील्स। सो गवर्नमेंट की स्कीम्स ये भी इक्वालिटी को बढ़ावा देती है। लाइक हम बात करें, एक स्कीम है मिड डे मील प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट है, इस सभी को न्यूट्रिशियस मील्स प्रोवाइड की जाएगी, मीन्स खाना फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इक्वालिटी बढ़ेगी। हर रिलीजन के, हर कास्ट के स्टूडेंट है साथ में बैठ के खाना खाएंगे। Then let's move to third factor, and it is laws made by the government. So the government makes various laws to support equality. Two such laws are mentioned below. So first it is the Equal Remuneration Act 1976 aims to provide equal pay to men and women for similar work. सो ये एक्ट क्या कहता है कि मैन और वुमन को सिमिलर वर्क के अकॉर्डिंग सिमिलर सैलरी मिलनी चाहिए। पहले क्या होता था कि वुमन को काफ़ी कम वेजिस मिलता था और मैन को काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती थी। देन हम बात करें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 aims to provide free and compulsory education for all children between 6 to 14 years of age। 6 to 14 एज के चिल्ड्रन को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना ये एक्ट का प्रावधान है। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट एवरी स्टूडेंट को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी खराब है। Then fourth factor it is individual efforts. So the constitutional rights and the steps taken by the government support equality. But unless we all believe that no one is inferior or everyone deserves to be treated with dignity, equality will remain a distant dream. So government अपनी ओर से काफ़ी ट्राई कर रही है कि इक्वालिटी मेंटेन हो, बट अगर हम ही नहीं समझेंगे, हम ही इक्वालिटी को मेंटेन नहीं करेंगे, तो इससे गवर्नमेंट का कोई मीन्स गवर्नमेंट जो भी करे इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले हमारी मेंटालिटी चेंज करनी है, हमें इक्वालिटी मेंटेन करनी है विथ आवर फ्रेंड्स और हमारे क्लासमेट। सभी में इक्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। Okay, so now let's move to animated video. I will start one more animated video, so keep watch carefully. Government schemes to promote equality. Imagine the lives of these two children. One is working hard to earn money to buy food every day, while the other goes to school and doesn't have to worry about food. What does this show us? Yes, it shows inequality. Inequality exists in different forms in society. These include economic inequality or inequality on the basis of income and wealth, gender inequality, where one gender gets more opportunities than the other, social inequality or discrimination on the basis of factors like caste, the color of one's skin, and religion. This causes distress among people and deprives them of opportunities. So, what does the government do in order to reduce such inequalities? The government tries to reduce these inequalities through various acts, schemes, policies, and programs. Let us take a look at a few of them today.
To promote employment opportunities, the government created the National Rural Employment Guarantee Act. This act aims to provide people in rural areas with at least 100 days of wage employment in a year. To overcome the problem of malnutrition, the government launched the National Nutrition Mission. To address the declining child sex ratio, the government launched a program called Beti Bachao Beti Padhao. It aims to increase awareness on issues faced by girl children. Among the various schemes and programs introduced by the government, one of the most important and well-known schemes is the Midday Meal Scheme. Under this scheme, meals are provided to children in government and government-aided primary schools. Let's learn about this program in detail. In 2001, the Midday Meal Scheme was launched to improve nutrition levels in school-going children, encouraging them to stay in school and thereby improving the literacy level of the country. Although its main aim was to provide food free of cost to poor school-going children, it proved useful in other ways too. After the implementation of this scheme, the enrollment and attendance levels in the government schools increased. The midday meal encouraged children to come to school and also helped them focus on their lessons, which they could not do earlier due to hunger. The program has helped reduce caste inequalities as children belonging to different castes sit together to eat the same meal. In many places, Dalit women have been employed to cook the meals in order to challenge caste prejudices. As the attendance rate increased, the literacy rate has also improved. Today, the midday meal scheme serves around 12 crore children in over 12,65,000 schools across the country, making it the largest school meal program in the world. To summarize, we can say that the government has introduced various schemes and policies to challenge inequalities. सो आई होप आप सभी को इस वीडियो में काफ़ी समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प कर रही है इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। लाइक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कीम इज़ मिड डे मील स्कूल। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट की, उसमें स्टूडेंट्स को फ्री में मील्स प्रोवाइड किया जाता है, खाना प्रोवाइड किया जाता है। इससे क्या होगा, स्टूडेंट का हंगर सेटिस्फाई होगा, देन स्टूडेंट काफ़ी अटेंटिवली अपना क्लास अटेंड कर पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी गुड स्कीम बाय आवर गवर्नमेंट। देन लेट्स मूव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.1। सो राइट डाउन वन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट supporting equality that is not followed and one that is followed in your community. So answer है, the constitutional right that is not followed in my community is the right to equality. Many people in my locality keep separate utensils for the domestic help. The constitutional right that is generally followed in my community, the freedom of speech and expression, and everyone is free to express themselves. So कम्युनिटी की बात करें, मेरे आसपास की जो कम्युनिटी है इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट काफ़ी फॉलो किया जाता है और एक है जिसको कम्प्लीटली अनफॉलो किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू इक्वालिटी, इसको कोई मेंटेन नहीं करता। हमारे पीपल अपने जो यूटेंसिल है काफ़ी सेपरेट रखते हैं। देन बात करें कि जो एक राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ये काफ़ी कम्प्लीटली फॉलो होता है। सभी अपने एक्सप्रेशन को, सभी अपने स्पीच को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन आवर कम्युनिटी। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम राइट टू इक्वालिटी को नहीं मानते, बट हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके सामने तो बहुत आवाज़ उठाते हैं। Then let's move to practice question 3.2 and it is very important question. So यहाँ पर कुछ स्कीम्स है और उसकी स्कीम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में हमें लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्कीम इज
Disabilities Act. Form of inequality it addresses. Inequality based on disability. Disability means कोई फिजिकल डिसेबल है तो इसके अकॉर्डिंग जो डिसेबिलिटी होती है इसको रोकने का काम करता है. So how does it help in promoting equality? So the government is expected to ensure full participation people with disabilities in society by providing free education, integrating children with disabilities into mainstream schools and making public places accessible. तो ये एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी हेल्प प्रोवाइड करती है जो डिसेबल पर्सन है इसको, लाइक फ्री एजुकेशन, इंटीग्रेटिंग चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स एंड मेकिंग पब्लिक प्लेसेस एक्सेसिबल. तो ये डिसेबिलिटीज एक्ट के काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट एंड इट इज़ इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट. तो ये एक्ट क्या कहता है कि इक्वालिटी बेस्ड ऑन इनकम एंड जेंडर. सो गवर्नमेंट किस तरीके से प्रमोट कर रही है ये एक्ट को, तो मेक्स इट कंपलसरी दैट बोथ मैन एंड वुमन बी पेड इक्वल वेजेस फॉर सिमिलर वर्क. गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन होगी तो यहाँ पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि मैन को ज़्यादा सैलरी मिले, वुमन को कम सैलरी मिले. अगर ऐसा होता है तो ये एक्ट उसको करने नहीं देगा. सो गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही है कि सभी को सेम इक्वल वेजेस मिलना चाहिए. देन नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE. सो ये एक्ट है इसके लिए कि इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन वेदर वन इज रिच और पुअर. कोई इकोनॉमिक कंडीशन से अगर इनइक्वल है तो इसके लिए एक्ट है राइट टू एजुकेशन. सो हाउ डज इट हेल्प इन प्रमोटिंग इक्वालिटी? सो इट प्रोवाइड्स free and compulsory education to all children between 6 to 14 years. गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि कोई भी इंडिया का चिल्ड्रन अगर उसकी एज है बिटवीन 6 to 14 years तो इसको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए. फ्री एजुकेशन मीन्स जो भी पुअर स्टूडेंट है तो उसको गवर्नमेंट हेल्प करेगी. रिच पर स्टूडेंट है तो ये तो बड़ी बड़ी स्कूल में जाके पढ़ेंगे, बट जो पुअर है इसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. Then fourth scheme it is midday meal program. So form of inequality it addresses it is inequality based on nutrition. Nutrition के अकॉर्डिंग जो inequality होती है तो इसको ये रिफॉर्म करता है, इसको ये सुधारता है. सो हम बात करें हाउ डज इट हेल्प इन प्रमोटिंग इक्वालिटी. सो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस मील्स टू चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 in all government and government aided school. सो जितने भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं यहाँ पर 14 ईयर तक सभी स्टूडेंट को फ्री में न्यूट्रिशियस मील्स प्रोवाइड किया जाएगा, सभी को खाना फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा. सो अब तक हमने क्या देखा कि इक्वालिटी इज एंश्योर्ड इन इंडिया थ्रू द फॉलोइंग वेज, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, government programs or schemes, laws made by government and individual efforts. इससे हमारे इंडिया में इक्वालिटी मेंटेन होती है, बट कंप्लीटली इक्वालिटी हमारे इंडिया में अभी भी देखने को नहीं मिलती. कास्ट, रिलीजन, जेंडर, वेल्थ, इसके अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है. तो इसको भी हमें सुधारना होगा, पब्लिक अवेयरनेस फैलानी होगी. ये काम आपका है. आप अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स को बताओ कि इक्वालिटी होनी चाहिए. कभी कहीं भी इनइक्वालिटी है तो यहाँ पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि इनइक्वालिटी ना हो. So this is about our chapter number 1. I hope you understood very well about all the points, all the topics, and if you have any doubts regarding these topics, you can ask me anytime. So this is the end of our chapter number 1. In the next video, we will move to chapter number 2. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.